Today we are going to do chapter number 1, the sounds in the evening. This is a poem written by Eleanor Ferguson. She is an English author of stories, poems and plays for children. There are few words for your murmurs. Good morning children. Today we are going to do chapter number 1, the sounds in the evening. This is a poem written by Eleanor Ferguson. She is an English author of stories, poems and plays for children. She was born in 1881. She was born in 1881 and her father and two brothers were also writer. इनके जो father और brothers थे वो भी writer थे. In this poem, she described about many sounds that can be heard in the evening at home, जिन्हें हम घर में evening के time में सुनते हैं. उसके बारे में यहाँ पर जो है poet ने describe किया है. Okay. So यहाँ पर मैंने कुछ words लिखे हैं आपको, जिनको आपको pronunciation करना है. Okay. इनको आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए. फर्स्ट वर्ड इज मर्मर्स. फर्स्ट वर्ड इज मर्मर्स. जेस्ट, babble, queer, slats. Again I repeat, murmurs, jest, babble, queer, slats. Okay. Here is the meaning of murmur. What is meaning of murmur? Speaking softly in a way that is difficult to understand. इतना धीरे बोलना. मरमर मीन्स बड़बड़ाना कह सकते हो. इसलिए बहुत धीरे धीरे बोलना जिसको दूसरे के लिए समझना डिफिकल्ट हो. Speaking softly in a way that is difficult to understand. ठीक है. Jest means jokes, मजाक. Babble means speech that is difficult to understand. Speech that is difficult to understand. Queer means odd and strange. Okay. So let's begin our poem. Take out page number 2 of your book, New Images. The sounds in the evening go all through the house. The click of the clock and the pick of the mouse. The sounds in the evening, as I already told you, the sounds that can heard in the evening go all through the house means the entire house was full of noise. पूरा house क्या है? Noise से भरा हुआ है. ठीक है. वो कह रहा है कि पूरे हाउस में इवनिंग के टाइम में जो साउंड्स आती हैं उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. द क्लिक ऑफ द क्लॉक. क्लिक ऑफ द क्लॉक इज द साउंड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लॉक. क्लॉक जब चलती है उसके नीडल्स जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका क्या साउंड है? क्लिक ऑफ द क्लॉक. एंड द पिक ऑफ द माउस. पिक ऑफ द माउस इट इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय माउस. पिक ऑफ द माउस मीन्स होता है माउस के द्वारा जो आवाज की जाती है वो हो गया पिक ऑफ द माउस. आई होप यू कैन इजीली गेट इट. सो देयर इज अ राइमिंग स्कीम हियर. राइमिंग वर्ड्स आते हैं. इवनिंग का नहीं है, हाउस का माउस. हो रहा है ना राइमिंग वर्ड. हाउस का माउस. ठीक है. ओके. नेक्स्ट स्ट्रेंजर. द फुटस्टेप ऑफ पीपल upon the top floor, the skirts of my mother that brush by the door. The footsteps of people upon the top floor. जब people top floor पर चढ़ते हैं तो उनके footsteps उनके कदमों की जो आवाज आती है, जो साउंड आती है, उसके बारे में यहाँ पोएट बता रहे हैं. The footsteps of people upon the top floor, the skirts of my mother. As suppose your mother is wearing a skirt and her skirt is so long. उसकी स्कर्ट जो है वो बहुत लंबी है and that brushes the door. और वो डोर से टकराती
चल रही है तो दैट ब्रश बाय द डोर, क्या होता है जब ब्रश डोर से टकरा रही है तो इट अलर्ट यू, आपको अलर्ट कर रही है कि बाहर से मम्मा आ रही है, मम्मा केम। सो ओके, तो यहाँ पर क्या राइमिंग वर्ड है देखिए, फ्लोर का डोर, फ्लोर का डोर है ना, ओके। द क्रिक इन द बोर्ड्स एंड द क्रिक of the board is the creak in the boards and the creak of the chairs, the fluttering murmurs outside on the stairs. And the creak of the chairs means when you are pushing or moving a chair, the sound which was produced by a chair is called a creak here. जो चेयर को जब आप इधर से उधर मूव करते हैं तो जो साउंड आती है वो क्या, उस साउंड को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रिक, ओके। द फ्लटरिंग मर्मर्स आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स, मर्मर्स मीन्स स्पीकिंग, murmur means speaking softly and the fluttering murmurs means ऊपर से धीरे से जो है बाहर से आती हुई आवाज, मरमर, धीरे धीरे बोलने का साउंड। आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स, बाहर से जो सीढ़ियों की तरफ से जो आवाज आ रही है, मर्मर्स की साउंड आ रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। द रिंग ऑफ द बेल, द अराइवल ऑफ द गेस्ट, ठीक है। द रिंग ऑफ द बेल मीन्स इफ यू कैन लिसन अ रिंग ऑफ अ बेल यू विल गेस द अराइवल ऑफ द गेस्ट। यदि हम डोर पर बेल की आवाज़ सुनते हैं, वी आर लिसनिंग अ वॉइस ऑफ अ रिंग, तो हम क्या सोचते हैं कि somebody come at the door, कोई गेट पर आया है, मे बी your friend, your relative, anybody else. The laugh of my father at one of his jest. The laugh of my father, my father indicates the whose father? My father indicates the poet father, he is the poet father. The laugh of my father at one of his jest, जो फादर हैं उनके हंसने की आवाज़ आ रही है, ठीक है, उनके हंसने की आवाज़ आ रही है। फादर इज लिसनिंग जोक्स सो ही लाफ, फादर जो हैं जोक्स सुन रहे हैं, मे बी ही इज़ लिसनिंग, शायद वो जोक सुन रहे हैं तो उनके हंसने की आवाज़। जेस्ट मीन्स क्या था, जोक, ठीक है। द क्लैशिंग ऑफ डिशेस एट डिनर गोज इन, क्लैशिंग ऑफ डिशेस मीन्स क्लैशिंग इज अ साउंड ऑफ, क्लैशिंग ऑफ डिशेस मीन्स मतलब क्लैशिंग मीन्स अ साउंड ऑफ dishes, sound of dishes. When we arranged a dining table we heard some voices of dishes. जब हम जो है डाइनिंग टेबल अरेंज करते हैं या फिर हम खाने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जब हम प्लेट्स लगाते हैं खाने के लिए तो हमें किसकी साउंड आती है, क्लैशिंग ऑफ डिशेस, यानी डिशेस की हमें साउंड आती है। वो जो आपस में बर्तनों के डिशेस की साउंड है उसे क्या बोल रहे हैं, क्लैशिंग, क्लैशिंग ऑफ डिशेस एज डिनर गो। तो जैसे ही डिनर की प्रिपरेशन हो जाती है और बर्तनों की जैसे डिशेस की साउंड आती है हमें तो पता लग जाता है कि आवर डिनर इज़ रेडी, तो हमारा डिनर तैयार हो चुका है। तो सो द बैबल ऑफ वॉइसेस दैट डिस्टेंस मेक थिन, बैबल मीन्स स्पीच दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बैबल और मर्मर्स में मतलब सिमिलर हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि बैबल की जो साउंड है वो बहुत काफ़ी दूर से आ रही है, वो डिस्टेंस मेक थिन, उस काफ़ी डिस्टेंस से आ रही है जिसकी वजह से जो वॉइस है वो बहुत ही कम सुनाई दे रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। ओके, सो म्यूज ऑफ कैट्स, द म्यूज ऑफ कैट्स दैट सीम जस्ट बाय माई ईयर। तो कैट्स का म्यू, कैट का साउंड क्या होता है, म्यू, द म्यूइंग ऑफ कैट्स, कैट्स जो आवाज़ कर रही है म्याऊ म्याऊ बोलती है ना, तो वो साउंड को क्या बोल रहे हैं, म्यूइंग ऑफ कैट्स दैट सीम, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे कानों के पास में ही कैट के बोलने की आवाज़ आ रही है। द हूटिंग ऑफ आउल्स दैट कैन नेवर सीम नियर, और आउल्स की साउंड क्या होती है, वो हुटिंग,
आउल्स की साउंड ऐसा लग रहा है जिसकी बहुत सीम नियर, पास से आती हुई नहीं लग रही है, यानी काफ़ी दूर डिस्टेंस से आती हुई सुनाई पड़ रही है। द क्वीर लिटिल नॉइजेस दैट नो वन एक्सप्लेन। इस तरह से काफ़ी सारी, बहुत सारी ऑड और स्ट्रेंज, क्वीर मीन्स ऑड और स्ट्रेंज, काफ़ी तरह तरह की ऑड स्ट्रेंज साउंड्स आ रही हैं, दैट नो वन एक्सप्लेन्स, जिसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, नो बडी कैन एलिबरेट। ओके, सो till the moon through the slats of my window blind rains, and the word of my eyes and my tears melt like steam. So till the moon through the slats means तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि वो जो है इवनिंग का जो टाइम है, राइटर इज एंजॉइंग द इवनिंग टाइम, वो इंजॉय कर रहा है इवनिंग के टाइम को, एंड ही सपोज वो जो है मून को जो है स्लैट्स मीन्स होता है जो विंडो में लकड़ी के पीसेस लगे हुए होते हैं, स्लैट्स विंडो से जो है वो मून के जो सीन को बहुत ही इंजॉय कर रहा है। ऑफ माई विंडो ब्लाइंड रेन्स, अपने विंडो से इंजॉय कर रहा है। एंड द वर्ड ऑफ माई आइज़, अपनी आँखों से पूरे वर्ड के जो है अच्छे मूवमेंट्स को, अच्छे जो सीन्स हैं, अच्छी चीज़ों को सुन रहा है, उनको इंजॉय कर रहा है। एंड माई ईयर्स मेल्ट्स लाइक ड्रीम, अब जो है धीरे धीरे उसके जो ईयर्स हैं, उसके कानों में जो है ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब क्लॉक की साउंड, द पिक ऑफ द माउस, फुट स्टेप्स ऑफ पीपल, स्कर्ट्स ऑफ माई मदर, क्रिक बोर्ड्स, क्रिक ऑफ द चेयर या क्लैशिंग ऑफ डिशेस, ये जो भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही थी, उनकी जो साउंड है वो उसके ईयर्स, कानों में धीरे धीरे से जो है क्या हो रहा है, उसकी साउंड जो है धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, मेल्ट्स यानी धीरे धीरे कम होती जा रही है, लाइक स्ट्रीम। एज आई फाउंड माई पिलो द वर्ड ऑफ माई ड्रीम, क्योंकि अब उसे क्या हो रहा है, अब वो अपना पिलो ढूंढ रहा है, पिलो क्या हो, क्योंकि वो क्या उसे पिलो ढूंढ रहा है मीन्स उसको अब क्या हो रहा है, नींद आ रही है। द वर्ड ऑफ माई ड्रीम, और वो अपने सपनों के संसार में जा रहा है। I hope you enjoy it, but you read it again and again. It is very easy poem. I have already discussed with you word meanings. So enjoy your studies. Goodbye.